Now let us talk about the plea of res judicata and its waiver. See, so far I have told you that the plea of res judicata is mandatory and what are its principles, etc. Indeed, it is a mandatory provision. It is a mandatory provision which shall be liberally construed. But the question comes that can the doctrine of res judicata be waived or not? See, in order to get that answer, you have to look into the nature of the doctrine of res judicata. See, the doctrine of res judicata belongs to the domain of procedure, procedural plea, and the party may waive the plea of the res judicata if it so wants. अगर वो चाहती है तो वो waive कर सकती है plea of res judicata. इसको कहते हैं वेवर ऑफ रेस जुडिकाटा या एक्सप्रेस वेवर. एक होता है डीम्ड वेवर, द डीम्ड वेवर ऑफ रेस जुडिकाटा. इसमें क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन से अराइज होता है जहां पे किसी पार्टी के पास प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा अवेलेबल है, बट वो प्ली प्रॉपरली रेज नहीं की जाती है ट्रायल कोर्ट के सामने या किसी भी प्रोसीडिंग में. ना उस प्ली के बेसिस पे कोई इश्यूज बनते हैं, ना उस पे कोई एविडेंस लीड किया जाता है. और ऐसी सिचुएशन में अगर वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके फॉर द फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड लेना चाहती है कि द रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन द ट्रायल कोर्ट जजमेंट, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि द प्ली दैट यू हैव taken for the first time before us has been waived because you did not properly raise it in the proceedings or in issues, neither did you lead any evidence on it. ठीक है, ये होता है deemed waiver. Now let me tell you some case laws on it. अब it has been the unanimous view of the High Court and the Supreme Court and also the Privy Council that the plea of res judicata can be waived. ये यूनानिमस व्यू है. जब मैंने पहली बार पढ़ा था सो आई हैड डाउट्स रिगार्डिंग इट, तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया एंड आई फाउंड दैट दिस वाज अ यूनानिमस व्यू, बट इट हैज़ अ बिट ऑफ टेक्निकलिटीज, वो मैं सारी आपको समझाऊंगा. अब देखिए, देर इज नो डाउट दैट द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी वेव्ड बाय अ पार्टी. The plea is decidedly dependent upon proof and disproof of many facts. If a party chooses not to plead such facts which establishes res judicata, then it can be stated that the party has waived the plea of res judicata. अगर एक पार्टी खुद ही वो फैक्ट्स नहीं प्लीड करती है जो रेस जुडिकाटा एस्टैब्लिश करता है या उस पर एविडेंस लीड नहीं करती है, then in that situation it is presumed that he has waived the plea of res judicata. A case in point is firm Sanaschan Lashman Das versus Dinanath Dubey, decided by Allahabad High Court. In this case, the Allahabad High Court said that the plea of res judicata was deemed waived as it was observed that on the basis of this rule that if the party who could raise the plea of res judicata does not raise the same when an opportunity is given to him, then he must be deemed to have been waived it. कि मान लिया जाएगा कि आपने वेव कर दिए वो प्ली, जब आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है to establish the plea of res judicata, you do not take those grounds, you do not lead evidence on that point, neither raise any issue on that point, then in that situation it is presumed that you waived the plea of res judicata. This is called a deemed waiver. I will tell you more cases. The next is a judgment of Privy Council, that is Jagdish Chandra Deo versus Gaur Hari Mehto. In this case, it was said that a party raising a plea of res judicata is not entitled to go into the question of res judicata when it has not been properly raised by the pleadings or in issues, and particularly in the issues. In the instant case that I am mentioning, neither any plea had been taken nor any issue on that point was sought. Hence, Privy Council said that you are not entitled to go into the plea of res judicata क्योंकि आपने उस प्ली को प्रॉपरली रेज ही नहीं किया, ना इश्यूज में और ना आपने कोई प्लीडिंग्स में उस पॉइंट ऑफ रेस जुडिकाटा को रेज किया. द नेक्स्ट केस दैट आई वुड लाइक टू टेल यू is Neelkanth Pillai versus Nilamma Pillai.
In this case, it was held that the plea of res judicata can be considered to have been waived if it is not properly raised in the pleadings. It was further held that ordinarily it is not permissible to allow a plea of res judicata to be raised for the first time in appeal. To invoke the doctrine of res judicata, the ingredients contemplated by Section 11 of the CPC have to be satisfied. The court has to see whether the elements that constitute res judicata are present in a given case or not, which means an investigation into the facts bearing upon several aspects contemplated by that section is necessary. अब आप देख रहे हैं ये भी कोर्ट उसी के फेवर में बोल रहा है, तो ये जो व्यू है यूनानिमस है. अभी मैं और भी जजमेंट्स आपको बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको एक मेन कारण बताता हूं. अभी आपने एक लाइन सुनी कि कोर्ट कह रहा है कि यू कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इन एन अपील में नहीं ले सकते. तो सवाल ये है कि अपील में क्यों नहीं ले सकते. और थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव दे दूं, ये जो अपील की बात कर रहा है ये सेकंड अपील की बात कर रहा है बाय द वे, ठीक है. तो ऐसे में बात ये जो कह रहे हैं कि जनरली प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा कैन नॉट बी टेकन इन अपील फॉर द फर्स्ट टाइम, then the question arises as to why can't it be taken in appeal for the first time. ठीक है. अच्छा, ये तो आपने समझ ही लिया कि अगर आपने प्रॉपरली रेज नहीं किया है प्लीडिंग्स में, इश्यूज में, neither you led any evidence on it, etc., then the plea is the one which is deemed to be waived. But the question arises as to why the appellate court cannot entertain it. उसका आंसर सिंपल है. उसका आंसर ये है, द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. कौन सा क्वेश्चन है? इट इज जनरली अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. इट इज नॉट अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कुड बी डिबेटेड एट एनी स्टेज. देखिए, जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब आप प्ली ले जाते हैं, अपील ले जाते हैं कोई भी, व्हेन यू टेक एनी अपील, देन इन दैट सिचुएशन दैट हैज टू बी अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ. वहां पे फैक्चुअल मैटर्स पे एविडेंस दोबारा से नहीं लिया जाता, ठीक है. वहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स नहीं डिटरमाइन होते. और अगर कोई इशू इज एन इशू ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, देन इट शुड हैव बीन टेकन एट द ट्रायल स्टेज. ठीक है, ट्रायल स्टेज पे ही लेना चाहिए उसको. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा है वो आप अपील में नहीं ले सकते फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज इट इज नॉट अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ which can be debated at any stage. Whereas the plea of res judicata, being a mixed question of fact and law, should have been taken at the trial court for the first time. It should have been properly raised, and the ingredients of the section 11 of the CPC have to be properly satisfied by giving evidence on it. ठीक है, इसीलिए अपील पे इसको पहली बार नहीं रेज किया जा सकता और फिर डीम्ड वेवर मान लिया जाता है अगर यू हैवंट प्रॉपरली रेज द इशू एट द ट्रायल कोर्ट. अगर प्लीडिंग्स अवेलेबल हैं, अब ट्रायल कोर्ट ने आपका एविडेंस देखते हुए, आपकी प्लीडिंग्स देखते हुए आपके खिलाफ ही जजमेंट दिया है, मान लीजिए उसने रेस जुडिकाटा नहीं माना, तब आपने प्ली प्रॉपरली रेज की है. अब आप अपील पे बता सकते हैं कि मैं फिर से रेस जुडिकाटा की प्ली लेना चाहता हूँ, क्योंकि ऑन द गिवन मैटर्स ऑफ लॉ जैसा कि अप्लाई करना चाहिए उसके हिसाब से रेस जुडिकाटा अप्लाइज, पर ट्रायल कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया है. दिस यू कैन डू, बट व्हाट यू कांट डू इज कि ट्रायल कोर्ट पे बिल्कुल भी रेस जुडिकाटा की प्ली नहीं ली और फिर अपील पे पहली बार जा रहे हैं टू टेक द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा. दैट इज समथिंग यू कांट डू. ठीक है, और अपील में सेकेंड अपील और अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें जो अपीलेट कोर्ट है फर्स्ट अपील में, वहाँ पे वो एविडेंस ले सकता है. लेकिन ये फर्स्ट अपील तक लिमिटेड है, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल तक ही होती है. वेयर बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 41 रूल 27 इट कैन टेक इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कुछ एविडेंस ले सकता है. और या अगर ट्रायल के दौरान ही इट माइट रिमांड द केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट. जो अपील में अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं फर्स्ट अपील में मैटर और अपीलेट कोर्ट चाहे तो इट माइट रिमांड केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट. लेकिन जहाँ तक सेकेंड अपील की बात है, जो सर्टेनिटी से हम लोग बोल सकते हैं, सर्टेनिटी से, पूरी सर्टेनिटी से, यहाँ पे सेकेंड अपील की बात हो रही है, अपील बिफोर द हाई कोर्ट एंड द अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दे बीइंग द कोर्ट्स ऑफ लॉ प्योरलीज,
then in that situation you cannot take the plea of रेस जुडिकाटा फॉर द फर्स्ट टाइम. देखिए एम्फोसिस दे रहा हूं मैं वर्ड्स पे. फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा बिफोर देम. तो जो जजमेंट आप पढ़ रहे हैं ना, इसको इस कंटेक्स्ट में पढ़िएगा कि ये हाई कोर्ट अपने कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवरीवन एल्स. हाई कोर्ट अपने कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, और फिर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट पे तो अप्लाई करेगा ही करेगा कि आप यू कैन नॉट टेक द प्ली और रेस जुडिकाटा फॉर द फर्स्ट टाइम इन सुप्रीम कोर्ट. जब आप हाई कोर्ट के सामने नहीं ले सकते तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते. तो इस बात को समझिएगा. अब जो मैंने अभी आपको अपेलेट कोर्ट वाला पॉइंट बताया, ऑर्डर 41 का रूल 27, वो जब मैं आपको अपील पढ़ाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लेकिन अभी के लिए हमें वेवर ऑफ रेस जुडिकाटा पे फोकस रखना है. तो आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए विदाउट अ शैडो ऑफ द डाउट, दैट प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी वेव्ड. It cannot be raised for the first time before High Court or Supreme Court. ठीक है? Or it cannot be raised for the first time if it has not been properly raised in the pleadings before the trial court or if no evidence has been laid upon it. ठीक है? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में डीम्ड वेवर माना जाता है. मैं आपको डीम्ड वेवर समझा रहा हूं इसमें. Then we move on to the next case, that is the judgment of Punjab and Haryana High Court, Chanan Das versus Union of India, decided on 8th May 1968. अब यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्टली अपने सामने कंसिडर किया कि क्या प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा वेव की जा सकती है या नहीं की जा सकती. तो उस पर्पस के लिए इट रेफर टू द जजमेंट्स ऑफ मैनी अदर हाई कोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली कैलकाटा हाई कोर्ट. और फिर उनका कंक्लूजन सेम आया कि इफ द पार्टी डज नॉट फॉरवर्ड अ प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा ही मस्ट हैव बीन टेकन टू हैव वेव्ड इट एंड टू हैव इंटेंशनली इनवाइटेड द कोर्ट टू डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स. अगर पार्टी ने रेस जुडिकाटा की प्ली पहली बार में नहीं ली है तब ये मान लिया जाता है कि उसने वेव कर दी है और उसने इंटेंशनली कोर्ट को इनवाइट किया है कि केस को डिसाइड करे मेरिट्स पे. ठीक है. अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अब रेस जुडिकाटा की प्ली अगर है और मान लीजिए वो सच में है, एग्जिस्ट करती है, और ऐसे में एक प्रीवियस जजमेंट और डिक्री है, और दूसरे केस में एक मान लीजिए दूसरा जजमेंट और डिक्री आ जाए एंड बोथ आर इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईच अदर, तो किसको फॉलो किया जाएगा? तो सवाल उठेगा. तो ऐसे में जजेस एक लाइन काफ़ी बोलते हैं कि द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज द वन विच आउस्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट बट इट इज नॉट द प्ली विच अफेक्ट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. अब ये लाइन लोगों को समझ में नहीं आती. आई विल एक्सप्लेन यू दिस लाइन. इस लाइन का ये मतलब है कि अगर प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा आपने प्रॉपरली ट्रायल कोर्ट में रेज की और ट्रायल कोर्ट एग्री कर गया आपकी बात से, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, सो डिसमिस कर देगा. वो इस बात पे डिसमिस कर देगा क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज, अज्यूमिंग वेवर नहीं हुआ है. लेकिन अगर मान लीजिए रेस जुडिकाटा की प्ली वेव कर दी गई है या डीम्ड वेवर है, और ऐसी सिचुएशन में एक डिक्री पास हो जाती है, सेकेंड डिक्री, तो जो सेकेंड डिक्री इन पॉइंट ऑफ टाइम है वो प्रेफर्ड की जाएगी. समझ रहे हैं? द सेकेंड डिक्री इज नॉट ए नलिटी. द सेकेंड डिक्री वुड बी प्रेफर्ड. This is what is meant by that line कि the res judicata is the plea which ousts the jurisdiction of the court but it is not the one which affects the jurisdiction of the court. इसका मतलब है कि कोर्ट के jurisdiction या उसका competence नहीं affect होता है, वो एक तरीके से बार है. लेकिन अगर उस बार का contravention हो गया तो वो है क्या? है तो at the end of the day procedural provision, और एक ही point पे और एक ही cause of action में दो conflicting degree exist नहीं कर सकती. So there has to be one. तो कौन सी prefer करेंगे? The latter in point of time. यही सिचुएशन रिकॉग्नाइज की गई थी इन फर्म संसर चंद लक्ष्मण दास वर्सेस दीनानाथ दुबे. ये बहुत सारे जजमेंट्स में रिकॉग्नाइज की गई है. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. उसमें बोला गया था इफ टू कन्फ्लिक्टिंग डिक्रीज हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पार्टीज इन टू डिफरेंट कोर्ट्स और इवन फ्रॉम द सेम कोर्ट, देन द लास्ट वन शुड बी द इफेक्टिव डिक्री बिटवीन द पार्टीज and the first decree should be regarded as dead. The basis of this salutary rule is that if the party who could raise the plea of res judicata
does not raise the same when an opportunity is given to him, he must be deemed to have waived it. The plea of res judicata is not the one which affects the jurisdiction of the court. It is a plea in bar and such a plea can be waived. ठीक है? I hope you understand this far. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए और डीजीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी जगह के लिए वेवर के पॉइंट में आपको छोटा सा पॉइंट लिखना होगा, 2-3 लाइनें लिख दीजिए कि यस सिंस इट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ प्रोसीजर इट कैन बी वेव्ड. और ये अगर प्रॉपरली रेज नहीं की गई है प्ली तो इट कैन बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, अगर इश्यूज नहीं फ्रेम हुए या उस पर एविडेंस नहीं लीड किया गया. सो इन दिस सिचुएशन आप उत्तराखंड, यूपी और बाकी जगह पे एक्सेप्ट दिल्ली और प्रैक्टिस में तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है प्रैक्टिस वाले लोगों को. बाकी लोगों को कंपैरेटिवली बस अवेयरनेस पे ध्यान देना, दे आर अवेयर अबाउट इट. ठीक है, तो as far as exam writing is concerned you have to just mention and talk about the waiver. ठीक है, सिर्फ वेवर की बातें करनी है कि आपने 1-2 लाइनें लिख दी. जब आप रेस जुडिकाटा के बारे में सब कुछ लिख रहे हो, अगर मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया रेस जुडिकाटा का, तो आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा. तो आप चाहें तो वेवर के एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं लास्ट में. ठीक है, वेवर मेन पॉइंट नहीं है आपके लिए. इन एग्जाम्स वेवर इज नॉट द मेन पॉइंट अनलेस एंड अनटिल इट इज डायरेक्टली आस्क्ड टू यू. अगर डायरेक्टली पूछा गया तो आप अवेयर रहेंगे, और अगर नहीं पूछा गया और मान लीजिए रेस जुडिकाटा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर का है और आप सोचते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं और आप काफ़ी कुछ लिखना चाहते हैं, तो यू कैन टच अपॉन इट. दैट इज अवेलेबल टू यू. डीजीएस में क्या होगा कि वेवर का एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट बना के वो लोग क्वेश्चन में छुपा देंगे, आपको ढूंढना है. प्रैक्टिस में क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी बट ऑन अ ग्रैंडर स्केल, बहुत ग्रैंडर स्केल में होगा. ठीक है, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल. द नेक्स्ट जजमेंट दैट आई लाइक टू टेल यू इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज श्रीमती वी राजेश्वरी वर्सेस टी.सी. सरनवभाव, डिसाइडेड ऑन 16 दिसंबर 2003. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे पुराने जजमेंट्स और हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स रेफर किए and said that the basic method to decide the question of res judicata is first to determine the case of the parties as put forward in their respective pleadings of previous suit, and then to find out as to what had been decided by the judgment which operates as res judicata. It is risky to speculate about the pleadings merely by a summary of recitals of the allegations made in pleading mentioned in the judgment. Then Supreme Court referred to it's another judgment, that is a Constitution Bench judgment in Gurbakh Singh versus Buralal, and said that placing on par the plea of res judicata and plea of estoppel under Order 2, Rule 2 of CPC. वैसे ध्यान रखिएगा, Order 2, Rule 2 जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं ना, ये एक ब्रांच ऑफ एस्टॉपल, इट इज़ नॉट पर से एस्टॉपल. तो लिखिएगा मत ऐसा एग्जाम में. ठीक है, मैं सिर्फ जजमेंट अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो you don't have to write as it is in exam. ये बस आपकी awareness के लिए. So continuing that in Gurbakh Singh versus Buralal, placing on par the plea of res judicata and plea of estoppel under Order 2, Rule 2 of the CPC, held that proof of plaint in the previous suit which is set to create the bar ought to be brought on record. आपको record पे वो plea लेनी पड़ती है. अगर plea is basically founded on the identity of the cause of action in the two suits, therefore it is necessary for the defense which raises the bar to establish the cause of action in the previous suit. Such pleas cannot be left to be determined by mere speculation or inferring by a process of deduction what were the facts stated in previous proceedings या in previous pleadings. Basically मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का कि देखिए रेस जुडिकाटा जो है इसके लिए प्रीवियस प्लीडिंग्स और प्रीवियस जजमेंट भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हुआ था. फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या उस जजमेंट के बेसिस पे क्या रेस जुडिकाटा के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, तभी तो सब्सिक्वेंट सूट बार होगा, क्योंकि रेस जुडिकाटा के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं. तो ये भी देखना होगा कि जो प्लीडिंग्स थी प्रीवियस सूट में वो क्या थी, जो जजमेंट था वो प्रीवियस सूट में क्या था, और उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे. अब वो आप डिडक्शन से नहीं डिटरमाइन कर सकते. दैट इज व्हाई द प्ली हैज टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. इमेजिन नहीं कर सकता है ट्रायल जज कि वहाँ पे क्या हुआ होगा,
या स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकता है. यहाँ पे रिकॉर्ड पे आना चाहिए सारी चीजें कि क्या क्या हुआ था, जिससे एक डेफिनेटिव फाइंडिंग हो सके दैट द रेस जुडिकाटा इज एस्टैब्लिश्ड. Similarly, Supreme Court mentioned another judgment that was of Privy Council, that was Kali Krishna Tagore versus Secretary of State of India. In that, it was pointed out that the plea of res judicata cannot be determined without ascertaining what were the matters in issue in previous suit and what was heard and decided. Needless to say, these can be found out only by looking into pleadings, the issues and the judgment in the previous suit. है ना? That is why, since the domain of the res judicata and the plea of res judicata is a mixed question of fact and law, and it belongs to the domain of procedure, that is why it is difficult to be raised for the first time before the High Court or the Supreme Court if you have not raised the plea before the trial court. ठीक है? That is why they will decline to go into that question, because the Supreme Court and the High Court are primarily the court of law. In the civil aspect, I'm speaking. They are primarily the court of law. They are more concerned with the questions of law. They are not concerned with the questions of fact or mixed questions of law and fact. तो एक बात मैं आपको सिखा दूं कि मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लिए जाते, अनलेस ऑफ कोर्स आप दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है. मैं बाकी जगह की बात कर रहा हूँ. बाकी जगह पे क्या कहते हैं, जहाँ पे सेकंड अपील जाती है, वहाँ पे यू कैन नॉट टेक मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है? अनलेस एंड अनटिल द हाई कोर्ट इज एक्टिंग अंडर एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. appellate jurisdiction में यू ओनली टेक द प्लीज ऑफ लॉ जनरली. ठीक है? जनरली स्पीकिंग, एंड आई एम स्पीकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. Then the Supreme Court continued and said, apart from that, depending on facts of a given case, the plea of res judicata is capable of being waived if not properly raised at an appropriate stage in an appropriate manner. The party adversely affected by the plea of res judicata may proceed on an assumption that his opponent had waived the plea by his failure to raise the same. और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3, 4, 5, 6 जजमेंट्स का रेफरेंस दिया, प्राइवी काउंसिल के, कई हाई कोर्ट्स का, कि आप उससे ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं. मेन चीज़ आपके लिए लाइन है, साइटेशंस नहीं. साइटेशंस तो आप आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं. ठीक है? सो आई होप दिस इशू इज़ फेयरली सेटल्ड फॉर यू. ये इशू सेटल्ड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है? द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा इज द वन विच इज केपेबल ऑफ वेवर.